Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 14, 15 और 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया किस साल को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। आई रिपीट, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 साल बताओ इंडियन आर्मी के द्वारा डिक्लेयर करे गए थे। अगर बात की जाए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तो ये रहेगा 2024। तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। पूछा जाए ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था, तो वो था 2023, जिसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि इंडिया मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं हम उनको इंपोर्ट ना करके इंडिया में ही बनाएं, इंडिजीनियस कंटेंट से बनाएं। एंड आज की जनरेशन जैसे अगर हम देखें तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइसेस, UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें आपके ड्रोन्स आ जाते हैं, राइट, इनका यूज़ किया जा रहा है, इनको इनकॉर्पोरेट करके, ताकि वेरियस सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में ही ना देखें तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी देखेंगे, तो इसका काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ देखने को मिलेगा ड्रोन्स का। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए, वेरियस सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई। इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव क्या है? संभव की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। आई रिपीट, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। साइबर डोमेन में एंगेज करने के लिए इंडियन आर्मी पर्सनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए साइबर सिक्योरिटी में यह लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट संभव। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड 2023 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए किनको CMD ऑफ द ईयर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है IREDA के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास। ठीक, फिर इसी के साथ साथ लीफ एरिक्सन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मून मिशन को। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा, किया कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप मेडल टैली में टॉप किसने किया? हरियाणा ने टॉप किया, राइट। अंडर 19
एशिया कप 2023 किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की किसने जीती? और ये पहली बार जीती है हरियाणा ने, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सब जूनियर स्नूकर टाइटल, सब जूनियर स्नूकर टाइटल या कौन किन्होंने जीता? वो है नताशा चेतन। और याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति इनमें से या कौन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद स्नूकर, तो वो है नताशा चेतन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट BSI सर्टिफाइड ISO 27001 पेट्रोकेमिकल फर्म? तो वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट, HPL। ये वो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिनको ISO 27001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया इन इंडिया। ये सर्टिफिकेशन इनको यूके बेस्ड सर्टिफाइड बॉडी BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी गई एट ए सेरेमनी दैट वाज हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और याद रखेंगे, HPL का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, करेक्ट। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये हाईलाइट करता है HPL's कमिटमेंट टू सिक्योर एंड रिलायबल डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो ईजी हो सके, डाटा ईजिली एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंशियली और इंटीग्रिटी के साथ यहाँ पे शेयर किया जा सके। ठीक है, फिर BSI की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुजैन मार्टिन, फाउंडेड बाय सर जॉन वॉल्फ बेरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1901। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की बात की जाए तो CEO नवनीत नारायण, हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट ऑन जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडिया? तो अभी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि जेंडर इक्वालिटी पे बात करती है। इनका मेन एम क्या रहेगा? बेसिकली जो लैंड पोर्ट्स है ना इंडिया में, उनको जेंडर फ्रेंडली बनाना। रीजन बीइंग, ताकि अभी हम देख रहे हैं वहाँ पे मैन तो काम करती हैं, वहाँ पे वीमेंस को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो ट्रेड सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर में अपना योगदान दे सके, एंड इससे वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो वीमेंस को भी प्रोवाइड कराई जा सके। आने वाले 3 साल में इन लैंड पोर्ट्स को यहाँ पे जेंडर फ्रेंडली बनाने की बात की गई बाय LPAI, एंड इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की थी जो कि है एनजेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, मार्क करेंगे, ट्रेड एंड टूरिज्म सेक्टर में वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एट लैंड पोर्ट्स, ये यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें ये बताया गया LPAI के द्वारा। बेसिकली एम क्या है? इन पोर्ट्स को, लैंड पोर्ट्स को जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से बनाना, ताकि वीमेन्स भी यहाँ पे जॉब्स के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ माइनॉरिटी राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 21 दिसंबर को पहली बार ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। फिर 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, S रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ ग्रीन टैक्स, ग्रीन टैक्स इंपोज करा जाएगा एयर पैसेंजर्स पर 2025 से। कौन सी कंट्री इंपोज करेगी? डेनमार्क करेगी। ठीक है, कौन सी कंट्री? डेनमार्क। फिर रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के कौन आएंगे? वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व या कौन सा टाइगर रिजर्व बिकेम इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क? ये डार्क स्काई पार्क क्या है? बेसिकली जब रात को नाइट पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, नाइट पॉल्यूशन नहीं, लाइट पॉल्यूशन, राइट। जब लाइट पॉल्यूशन ना के बराबर होता है तो जो हमारा स्काई है ना, उसमें जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं, करेक्ट। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये पहला डार्क स्काई पार्क बना इंडिया का, जो कि है पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पर रहेगा पेंच टाइगर रिजर्व? ये महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला है, इंडियाज फर्स्ट, लेकिन एशिया का ये 5th डार्क स्काई पार्क रहेगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। कहां पर है पेंच टाइगर रिजर्व? ये आपका महाराष्ट्र में रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं,
किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक पैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड लोन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं एंड इसमें भी जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको हेल्प करने के लिए, इनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि ये अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, राइट? जब भी इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, तो यही यहाँ पे इनको हेल्प किया जा सके। इसी के लिए किस बैंक ने टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ? वो है एसबीआई। इवन एसबीआई ने एक स्वयं सिद्धा नाम का एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप किया स्पेसिफिकली फॉर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट? यहीं पर इनको टूल किट भी प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो टूल किट होगी बेसिकली क्या है? वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आप फाइनेंशियली आप अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, याद रखेंगे। तो एसबीआई की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1955 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, इसके अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली 67th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए। देन फिर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है, किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ किन्होंने लीड्स रिपोर्ट को रिलीज किया? ये एक लीड्स सर्वे था, तो ये रिलीज किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। देन इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने $250 मिलियन का लोन दिया ताकि इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की जा सके? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर टाई अप करा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, रिलायंस, याद रखेंगे, रिलायंस बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही, राइट? मोतीलाल ओसवाल स्टडी के हिसाब से रिलायंस बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही एज पर मोतीलाल ओसवाल स्टडी रिपोर्ट। देन अटल हेल्थ फेयर हुआ था। अटल हेल्थ फेयर ये लखनऊ में हुआ। इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन बैंक ने अभी कोलैबोरेट किया 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वीजा एंड एनपीसीआई। तो इन तीनों के साथ मिलके इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये वीजा एंड रुपए दोनों से पावर्ड रहेगा। अगर इंडियन बैंक की मैं बात करूं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? शांतिलाल जैन। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा। 1907 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक, मूविंग ऑन, फिर आते हैं किस बैंक ने अभी लॉन्च किया एक ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू सपोर्ट द ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। हम जानते हैं हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं एंड ग्लोबली बाय बॉन्ड्स या फिर जैसे अभी हम देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, इनके थ्रू पैसा रेज किया जा रहा है ताकि जो क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वर्क किया जा सके, ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बेसिकली, राइट? तो किस बैंक ने अभी ये ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम को लॉन्च किया? वो है एसबीआई ने। 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, 1111 दिन, 1777 दिन, 2222 दिन। इन 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, ये आपका एक तरीके का जो स्कीम है जो कि है बेसिकली किसके लिए? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम, जो कि एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं 3 टर्म्स के लिए और एसबीआई के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम लॉन्च की गई ताकि टू सपोर्ट द ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, फिर नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने को अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला टू सेटअप अ होली ऑन फाइनेंस कंपनी इन गुजरात? तो वो रहेगी पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्ना सीपीएससी है, इनको अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला है ताकि एक अपनी होली ऑन फाइनेंस कंपनी ये इस्टेब्लिश कर सके एट द आईएफएससी इन जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, आईएफएससी जिफ्ट गांधीनगर गुजरात में अपना खुद की एक होली ऑन फाइनेंस कंपनी सेटअप करने का अप्रूवल मिला पीएफसी को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। इससे इंडिया के पावर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बढ़ जाएगा। अगर हम देखें 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कितना था, 5.1% का, और यही बढ़कर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो जाएगा, 5.2% का यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा इन 2024, और 2023 में ये कितना है, 5.1% का। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एक और यहाँ पे डाटा बताया गया कि 2024 में 2 मिलियन लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहेंगे, मतलब 20 लाख लोग इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो रेट है रहे, मतलब जो ये 0.1% का गैप आया ना 5.1 से 5.2 के बीच में, ये कितना है, 2 मिलियन लोग यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखेंगे एट द ग्लोबल लेवल इन 2024। राइट, रीजन क्या है, एक तो हम देख रहे हैं ग्लोबली जो अनसस्टेनेबिलिटी चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स कम होती जा रही हैं, जो कर्जा है यूएस का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, कंज्यूमर जो बिजनेस है वो कम होते जा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इसकी मदद से जो काफ़ी सारी जॉब रोल्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इवन गूगल ने भी, हमने देखा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इनके द्वारा काफ़ी सारे ले ऑफ्स भी किए जा रहे हैं अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज जीडीपी टू सरपास $4 ट्रिलियन इन 2024-25 एज पर पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो इंडिया की जीडीपी है ना, ये क्रॉस कर जाएगी 4 ट्रिलियन के मार्क को इन 2024-25, और यही 5 ट्रिलियन के मार्क को सरपास कर जाएगी इन 26-27। ठीक है, 4 ट्रिलियन 24-25 में और 5 ट्रिलियन इन 25-26। इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट इंडिया जीडीपी टू रीच $7 ट्रिलियन बाय 2030 एज इंडिया इज कमिटेड टू अटेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 अंडर विकसित भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नारायण हेल्थ, इनको रिसीव हुआ IRDAI का अप्रूवल टू लॉन्च द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। ये नारायण हेल्थ, ये एक सब्सिडरी है नारायण वन, ये एक सब्सिडरी है नारायण हृदय लिमिटेड की, और इनको अभी एक लाइसेंस मिला IRDAI से, ताकि ये एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम कर सकते हैं एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर नारायण हेल्थ की बात करूं तो फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका, और 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली DRDO के द्वारा आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को टेस्ट किया गया फ्रॉम ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। राइट, तो DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को टेस्ट किया गया ITR ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। मार्क करके चलेंगे, DRDO के द्वारा ये आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया, एंड ये इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को के द्वारा यूज़ की जाती है ये आकाश मिसाइल्स। एंड DRDO के बाद याद रखेंगे, DRDO पिछले 10 सालों से यहाँ पे इस आकाश सिस्टम को डेवलप कर रहा है, नई नई इसमें मिसाइल चला रहा है, और इस मिसाइल के नए अपग्रेडेड वर्जन पे ये काम करता रहता है। ठीक, DRDO की बात करूं तो डॉक्टर SV कामत यहाँ के चेयरमैन रहेंगे, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर रहेगा, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया HIIA रॉकेट कैरिंग जापान IGS। IGS क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम रहेगा ऑप्टिकल 8। ऑप्टिकल 8 क्या है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट है, किस कंट्री की ये रहेगी, ये जापान की रहेगी। किसके द्वारा लॉन्च की गई, HIIA रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई, जो कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था ये रॉकेट। करेक्ट, इन्होंने जापान की सैटेलाइट ऑप्टिकल 8, जो कि एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट रहेगी, इसको स्पेस में ले गए एट अ 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, और इसको जापान में लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2024 को। जाक्सा के द्वारा ये डेवलप किया गया था 48 HIIA रॉकेट, करेक्ट, और 48 लॉन्च था इस रॉकेट का सिंस इट्स डेवलपमेंट बाय जाक्सा इन 2001। जाक्सा क्या है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इसरो है ऐसी जापान की जाक्सा है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो अभी एक नई बटरफ्लाई की स्पीशीज डिस्कवर की गई है
सिगारेटिस कंजक्टा, राइट। सिगारेटिस कंजक्टा ये नई स्पीशीज है बटरफ्लाई की। कहाँ डिस्कवर की गई? ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पर डिस्कवर की गई है सिगारेटिस कंजक्टा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट पर आते हैं फिर स्टेट न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई। स्कीम का नाम रहेगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। यहाँ पर 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन को हेल्प करने की बात की गई एंड इनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बात की गई ताकि अपना खुद बिजनेस डेवलप कर सके एंड एम्प्लॉयड हो सके। इसीलिए ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लॉन्च किया गया असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रहेगा इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए टू हेल्प दी सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन्स। 2 फेज में यहाँ पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पहले फेज में 10,000 रुपए दिए जाएंगे टू ईच वीमेन। फेज 2 में यहाँ पर 25,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें से ये आपको लोन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स देना होगा। एंड ये जो लोन इसमें 12,500 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा मनी दिया जाएगा एंड आपका 12,500 रुपये ये बैंक का है जो कि रीपे किया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो ये आपकी स्कीम है, लॉन्च की गई है असम के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस को हेल्प की जा सके। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन की तरफ। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स पहला BSI सर्टिफाइड ISO 27001 पेट्रोकेमिकल फर्म बन गया। LPI ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडिया। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व वो पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है इंडिया का और 5th इन एशिया। देन SBI ने एक पैक्ट साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड लोन क्रेडिट फैसिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इंडियन बैंक ने कोलैबोरेट किया 3 अदर एंटिटीज के साथ टू लॉन्च इंडियन बैंक वन को क्रेडिट कार्ड। SBI ने लॉन्च किया ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू सपोर्ट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। PFC को RBI का अप्रूवल मिला टू सेटअप होली ओन्ड फाइनेंस कंपनी इन गांधीनगर गुजरात। फिर ILO इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की एंड बताया कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाएगा इन 2024 टू 5.2%। इंडिया की GDP टू सरपास $4 ट्रिलियन इन 2024-25 एज पर PhD CCI। नारायणा हेल्थ इनको RDI का अप्रूवल रिसीव हुआ टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। DRDO ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया HIIA रॉकेट कैरिंग जापान IGS जो कि है इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट। देन न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज सिग्रेटिस कंजक्टा ये डिस्कवर की गई इन ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के द्वारा हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम 4,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया जाएगा एंड ये असिस्ट करेगी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आवाज़ आते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज़ किया गया। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है और इसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग पूछी गई है कितनी रहेगी, तो 80 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग। फिर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री कितनी कंट्रीज़ में अभी, तो 62 कंट्रीज़ में इंडियंस वीज़ा फ्री जा सकते हैं, राइट, और रैंक रहेगी 80। वहीं पर अगर पूछा जाए 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो 2023 में इंडिया की पोजीशन थी 83rd और 58 कंट्रीज़ को यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी। और अब 2024 में अगर हम देखें तो 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री और 80 रैंक रहेगी, मतलब इंप्रूव हुई है। टॉप पोजीशन पे 6 कंट्रीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं 6 कंट्रीज़? वो ये हैं आपकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। लोएस्ट पोजीशन पे या फिर हम बोले वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का रहेगा ग्लोबली, वो है अफगानिस्तान का। 104th रैंक पे आता है ये और 28 नेशंस को यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है वीज़ा फ्री जाने का इनके पास। हेनलैंड पार्टनर्स की बात करें तो डॉक्टर ज़ुरेग स्टेफन यहाँ के CEO रहेंगे। हेडक्वार्टर लंदन UK एंड 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन MSCI EM इंडेक्स? MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या पूछी गई, क्या रहेगी? तो इंडिया की रैंक आ जाती है सेकंड। फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है? वो है चाइना की। राइट, तो याद रखेंगे यहां पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और ये MSCI EM इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? ये आपका जो इन्वेस्टेबल बेंचमार्क होता है जो इंडेक्स का ऑफ द इक्विटी मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे 24 एमर्जिंग कंट्रीज का यहाँ पे एक मिड कैप एंड लार्ज कैप सेगमेंट रहता है, उनको कैप्चर किया जाता है। करेक्ट, तो सेकेंड रैंक रहेगी इंडिया की इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है चाइना। ठीक, फिर थर्ड पोजीशन पे पूछा जाए तो ताइवान थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पर साउथ कोरिया एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका ब्राजील। ठीक है, अगर इंडिया की पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का क्या आपका इंडेक्स रहेगा? तो इंडिया का था 17.1% और ये एक्सपेक्टेड है 2024 के स्टार्टिंग में कि ये 20 टच कर जाएगा। अगर मैं बात करूं चाइना का कितना इंडेक्स है, वो है 26.6। चलिए, इवन हम देख रहे हैं इंडिया में पिछले 11 सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है, फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और हाईएस्ट इन्फ्लोज हमें देखने को मिले हैं इंडिया में इन द लास्ट 7 ईयर्स। इवन हम देखें तो इनवर्ड रेमिटेंस के हिसाब से भी इंडिया में वो एक लौती कंट्री है जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रैक किया और इस बार हम $100 बिलियन का, हमने $112 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स? IRFA इंडेक्स अभी लॉन्च करने वाली दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है? जर्मनी की फ्लोरिडा USA बेस्ड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एंड जुपिटर वैगन्स। करेक्ट, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। ये 15वां एडिशन था, प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2023 में। ठीक है, उसके दौरान ये IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया। करेक्ट, और ये IRFA इंडेक्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल है जो कि इंडियन रेलवे फ्लाइट एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसमें जो भी हम बेटर कर सकते हैं उस डाटा के एनालिसिस करके वहां पे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। फिर जुपिटर वैगन्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? मिस्टर विवेक लोहिया। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल और इसको 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करें तो MD एंड CEO रहेंगे अविनाश गुप्ता। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र एंड इसने अपने ऑपरेशंस 1995 में स्टार्ट करे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ लेटर ऑफ अरेंजमेंट एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दो अभी साइन किए गए किस कंट्री के साथ, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये पहले तो ये देख लेते हैं किस कंट्री के साथ। तो इंडिया ने UK के साथ यहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अगर बात करूं मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, ये बेसिकली इंडिया और UK के बीच में साइन हुआ ताकि इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, कैडेट्स को एक्सचेंज कराया जा सके एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। फिर लेटर ऑफ अरेंजमेंट जो साइन हुआ है इंडिया की DRDO एंड UK की DSTL डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इन दोनों के बीच में ये एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट साइन हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली इंडिया किस IIT ने एक नया कैंपस सेटअप करने की बात की इन श्रीलंका के कैंडी एरिया में एक नया IIT सेटअप करेंगे जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा IIT सेटअप करेगा? तो ये है IIT मद्रास। चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड IIT मद्रास एक नया टेक कैंपस सेटअप करेंगे कैंडी श्रीलंका में। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहाँ से जो भी UGC यहाँ पे गाइडलाइंस देंगी, जो भी उनका करिकुलम होगा, जो भी यहाँ पर कोर्स बनेगा वो सारा UGC के द्वारा अप्रूव करा जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रहेगा? वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को? तो अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप को। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? रशिया के पास रहेगी। राइट, फिर अभी रिसेंटली इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेंगे युगांडा नाम समिट में?
कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए किनको सम्मानित किया गया था MS स्वामीनाथन अवार्ड से, तो प्रोफेसर BR कंबोज को यहां पे सम्मानित किया गया विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। फिर अभी रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन, ये एक एक्सरसाइज हुई थी, राजस्थान में हुई, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई? तो इंडिया एंड UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। SBI's proposed dollar denominated bonds gets which rating from S&P and Fitch? S&P एंड फिच रेटिंग्स, इन दोनों के द्वारा अभी SBI के प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को कौन सी रेटिंग मिली? तो BBB नेगेटिव रेटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है फॉर द SBI's प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि S&P एंड फिच के द्वारा इनको कौन सी रेटिंग दी गई? BBB नेगेटिव की यहां पर रेटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं IPPB एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान? राजस्थान के रूरल एरियाज में सर्विसेज जैसे लोगों को हेल्प करना अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, फिर उनके पेंशन प्लान के लिए, फिर कहां पर उनको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए, कहां पर उनको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, कहां पे लोन्स लेके वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करके किसी प्रॉपर्टी में। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए IPPB ने अभी किनके साथ टाई अप किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो भी एक्टिविटीज हैं उनके अंडर यहाँ पे ये हेल्प करेंगे IPPB के साथ मिलके, ताकि रूरल एरियाज में ये सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सकें, और इसी के लिए इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है। यहीं पर अगर हम देखें IPPB की बात, तो CEO कौन रहेंगे? वेंकटरमन जयंती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो CEO अरुण मिश्रा, हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे अभी रिसेंटली एक्सपोसेट, ये PSLV C-58 रॉकेट की मदद से एक्सपोसेट सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जेमिनी की अगर मैं बात करूं, जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। फिर इसी के साथ साथ किन्होंने अभी अंडर 19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप को जीत लिया है अंडर 19 कैटेगरी में? वो है अनाहत, राइट। इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टाइटल को जीत लिया फॉर अंडर 19। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। कॉपीराइट लॉ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। नेक्स्ट, Bloomberg Index Services will include India's FAR bonds into their emerging market index from dash। तो अभी रिसेंटली Bloomberg Index Services Limited ये इंक्लूड करेंगे इंडिया के FAR, जो कि होता है फुल्ली असेसिबल रूट बॉन्ड्स को, इनटू देयर एमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 2024। ठीक है, एंड एज पर्पज द प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट वोल्स विल बी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग स्पेनिंग ओवर 5 मंथ्स, मतलब फेज्ड वाइज ये यहाँ पर इनकी इंप्लीमेंटेशन की जाएंगी ओवर 5 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024, और जनवरी 2025 तक जाके ये सारे यहाँ पर लिस्ट किए जाएंगे। एंड इवन सितंबर 2023 में यहाँ पर JP मॉर्गन ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स सूट फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद इंडियन रुपी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट currency component following the Chinese renminbi and South Korean won within the Bloomberg Emerging Market Local Currency Index। नेक्स्ट है आपका होमवर्क सेक्शन। पहला, recently which scheme was launched by Karnataka government for providing financial aid to unemployed graduates and diploma holders। दूसरा, recently International Camel Festival was started in which city of India। तीसरा, गंगा सागर मेला इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एंड चौथा, विच बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट, अभी हमने देखा था। पांचवा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PM ई बस सेवा स्कीम। तो ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel, and if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.